हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल ज्ञानेश नोटियाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको कई वीडियो ऐसे मिलेंगे जिनसे आप मैथमेटिक्स गणित की जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम होती है उनको आसानी से हल भी कर पाएंगे और अगर समझने में कोई परेशानी तो उन्हें समझ भी पाएंगे, जिसके बाद आप समझने के बाद उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। आज हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हमने पूर्व में कई बार पढ़ा हुआ है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन का एक मिक्स फॉर्म है, यानी आपके जितने भी समीकरण होते हैं उनका एक फॉर्म है, मिक्स फॉर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। इनकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। राइट एनी कंडीशन विद अल्फाबेट नंबर साइन इज इट कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन and write any condition with alphabet number sign and equal to is called algebraic equation. In complete form that is called polynomial. So any condition write with alphabet 2x square plus 3x plus 4 alphabet number and sign, then it is called polynomial. Algebraic expression it is also we can say that. And what is the type of parts of this? Here plus minus plus signs, plus minus, generally if I write here minus, it already we have divide in three parts. So any polynomial divide by plus minus sign in part that is called terms. Here 2x square, 3x and 4 is terms. So plus minus sign divide a polynomial in a part that is called terms. Second, in a terms highest power of alphabet, here power is 2, here is 1, then in polynomial the highest power of alphabet in a terms is called degree. Highest power of alphabet in a terms is called degree, and degree decide by degree and by terms we can divide polynomial and in three parts, generally three parts. If degree is 1, that is called linear equation. If degree is 2, then it is called quadratic equation. If degree is 3, then it is cubic equation. By degree, we can divide in three parts. Similarly, number of terms decide in also a type of polynomial. Here, if terms is only 1, that is called monomial. If terms is 2, then it is called binomial. And if terms is 3, then it is called trinomial. So, by this method, we see that 2x is monomial, 4x minus 5x cubed is binomial. It is monomial, binomial and trinomial. And similarly, power is 1, highest power is 1, then it is linear. Highest power 2, it is quadratic, and highest power 3 is cubic. So it is the form of linear, quadratic and cubic. One equation maybe have two names. In generally, it is quadratic and trinomial both. By degree, we can decide one type, and by terms, we can decide other type. By this method, we can, or by observation, we know that what is the name of this polynomial. And similarly, if we, for any value of x, we get 2x square plus 3x minus 4 equal to 0. Then it is called zero polynomial. For any value of x, we have this all equal to 0, then it is called zero polynomial. So today we have learned zero polynomial in factorization system. By terms, we have already decided the type of polynomial, but it have not fixed standard form. But by degree, they have standard form. So, linear equation have ax plus b. It is the form of linear equation. Ax square plus bx plus c. It is the form of quadratic equation. And ax cube plus bx square plus cx plus d. It is a cubic equation standard form.
So by this method we can write the standard form of linear equation, quadratic equation and cubic equation. You see here, in each time the highest power is with alphabet A, means highest alphabet power alphabet coefficient is called A, and second things is called B coefficient. So in linear equation x coefficient is A and other things B. In quadratic, x square coefficient is A, x coefficient B and other things are C. In third, x cube coefficient is A, x square coefficient is B and x coefficient is C and other things are D. So by this method we can decide which value is A, which value is B, which value is C. So we can solve any equation, quadratic equation and linear equation and cubic equation. By this method we know that the number of powers in our equation means degree decide how many solution of it. If degree is 2, then solution are 2. If degree is 3, then solution are 3. If degree is 1, then solution are 1. If degree is 4, then solution are 4. So this method हमें मालूम चल जाएगा कि कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब इससे हम हल करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी के दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा एक्स स्क्वायर यानी पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म ये हमेशा एज इट इज रिपीट हो जाती है। जितने भी साइन होते हैं क्वेश्चन में सब जैसे के जैसे हैं वो लिख देते हैं, इनमें कोई चेंज कभी भी मत करना। पहली वाली टर्म्स, लास्ट वाली टर्म्स और जितने भी साइन है उनको जैसा का जैसा नीचे लिख दो। अब एक तरीका होता है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नंबर क्या है, बाहर का जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 8, माइनस का 8 तो माइनस का 8 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब नेगेटिव में आता है तो बीच वाले से बड़ा नंबर और अगर पॉजिटिव आए तो बीच वाले से छोटा नंबर लेते हैं। हमेशा याद रखना, नेगेटिव आ गया किनारे का आउटर का मल्टीपल तो बीच वाले से बड़ा नंबर और पॉजिटिव आ जाए तो बीच वाले से बड़ा नंबर लेते हैं। तो आपने देखा जब हम यहाँ पे नेगेटिव आ रहा तो बीच वाले से बड़ा, यानी 2 से बड़ा कितना होता है 3 कम 3, हमारा आंसर तो माइनस 8 है। फिर एक और नंबर बढ़ा दिए दोनों में 4 दूनी 8। तो इस तरीके से बड़ा नंबर लेते जाएंगे और ये नंबर तो हमेशा ही बढ़ते जाते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको लिखा तो आपका पहला नंबर है 4 तो 4x, दूसरा नंबर है 2 यानी 2x। अब आपने देखा कि सर ये बाकी सबके तो साइन हो गए, ये 2x का साइन नहीं है बाद वाली चीज का, तो इसका साइन डिसाइड करता है हमारे ऊपर वाला। अगर ये नेगेटिव है तो पहले वाले से चेंज कर दो, अगर पॉजिटिव है तो ऐसा वैसा लिख दो। तो आपने देखा ये नेगेटिव है तो पहले वाले से चेंज करा तो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा कॉमन लेते हैं। तो आपने देखा दोनों में x है, नंबर तो कोई ऐसा है नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये आ गया x माइनस 4। यहाँ पे हमने देखा कि नंबर है 2 जो दोनों को डिवाइड करता है और यहाँ पे आ गया x माइनस 4। हमेशा इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम फैक्टर में लेंगे वो दोनों हमेशा सेम ही होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ सकता। x माइनस 4 है तो x माइनस 4 ही आएगा, अगर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ही है। अगर आपको ज्यादा परेशानी रहती है कि नहीं मैं किससे डिवाइड करूं, क्या कॉमन लूं, क्या करूं, तो आप एक काम करिए इसको दोबारा से लिख दीजिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा किससे क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा ले भी नहीं पाएंगे। अब हमारा आंसर हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2। जब हमारी ये दोनों चीजें आ जाती है हम इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखते हैं, जैसे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपने देखा -4 को सेकंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 4 और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस। अब आपने देखा यहाँ पे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसमें हमारे 2 आंसर मिल गए। अब 2 आंसर मिलते हैं और लीनियर में तो हमारे एक ही मिलता है आंसर, तो इसमें हमेशा अगर हमें जितने से आंसर मिलते जाते हैं उसके अनुसार इनको नाम देते जाते हैं। जैसे पहले आंसर को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे आंसर को बीटा, तीसरा आंसर भी आगे निकल जाए तो गामा कह देते हैं। इनको इस तरीके से लिखा जाता है अल्फा बीटा गामा।
ये एक जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म डिसाइड करी गई है, इसके लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेम है। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, जैसे मेरा नाम ज्ञानेश है, तो उसी तरीके से इसका नाम है अल्फा बीटा गामा। आपने देखा होगा जैसे हम एक्स वाई जेड मानते हुए आए हैं आज तक, तो उस तरीके से इनको मानते हैं। अब आपने देखा इसके दो सॉल्यूशन तो मिल गए, इन्हें हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं, और रूट्स के नाम से भी इन्हीं को पहचानते हैं। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, इनका नाम चेंज कर दिया जाए तो जीरोस, रूट और हिंदी में इसे मूल भी कहते हैं, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। इनके नाम है हमने अल्फा बीटा रख दिया, ये हमारी सॉल्यूशन है। इन्हें जीरोस का हो या रूट्स का हो या हमारे कुछ भी का हो, फर्क नहीं पड़ता। अब हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन थी उसके अनुसार हमने देखा कि एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल था वो हमेशा ए होता है, तो हमारा ए क्या है 1। फिर हमने देखा बी एक्स का मल्टीपल होता है, तो हमने देखा एक्स का मल्टीपल क्या है -2, तो बी आ गया -2। और बची हुई जो चीज होती है वो सी होती है, तो सी मतलब क्या हो गया -8। अब हमें तीनों चीज मिल गई। तो अब इसके बाद हमारे को एक कंडीशन कही गई है कि जब भी हमारे जीरोस आते हैं अल्फा बीटा और एबीसी जो आते हैं, इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये एक रिलेशन है। और सेकेंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू पता है वो, जैसे आपने देखा है अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की है -2, यहाँ पे माइनस जैसा था वैसा वैसा लिखा, बी कितना है -2, इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन 1। ये आंसर आ गया। आपने देखा 4 -2 और ये प्लस का 2 हो गया, आंसर आ गया 2 = 2। हमारे दोनों आंसर इक्वल आए, तो ये हमेशा ही इक्वल आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये कंडीशन है, कंडीशन को कई बार वेरीफाई कराता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी कंडीशन को वेरीफाई कराए तो वेरीफाई का मतलब है दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। कई लोग स्टूडेंट करते हैं इसको भी नॉट वेरीफाई करते हैं, अरे नॉट वेरीफाई क्यों होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमेशा ही वेरीफाई होगा चाहे आंसर कुछ भी आए। दूसरा इसको देखिए अल्फा बीटा, तो आपने देखा अच्छा ना -2, यहाँ पे आ गया -8/1, तो आपने देखा दोनों आंसर ही -8। तो आपने देखा दोनों बार में ही हमारे जो आंसर आ रहे हैं दोनों सेम ही आ रहे हैं वेरीफिकेशन में। जो वेरीफाई कर रहे हैं उनमें आंसर हमेशा सेम आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। और इसी तरीके से हमने वेरीफाई करके आंसर निकाल लिया। एबीसी की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो भी है वो ए है, एक्स का मल्टीपल जो भी है वो बी, और जो बची हुई चीज है वो सी। और इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया कि इनको हल करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी पहले नंबर पे जो है वो और लास्ट पे जो है उनको तो एच डी लिख दो, साइन भी एच डी लिख दो। अब बाहर वाली चीजों को गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए, और उससे हम ये देखेंगे जो भी आंसर आ रहा है अगर नेगेटिव आ रहा है तो बीच वाले से बड़ा नंबर, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बीच वाले से छोटा नंबर लेते हैं। ये एक तरीका फिक्स है। इसमें हम कभी भी फैक्टराइजेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का जो फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, इसमें कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद हम आज यहाँ पे इसको रोकेंगे क्योंकि बाकी चीजें हम थोड़ा कल के लिए छोड़ें। x² प्लस 8x प्लस 60। आपने देखा है हमारे पास ये भी एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो तरीके में कोई चेंज नहीं होता है, साइन जितनी भी है वो जैसे कि जैसे, और पहले और आखिरी नंबर पे जो भी टर्म्स आ रही है उनको सीधा एज इट इज लिख दो। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे हम गुणा करा तो हमारा आता है प्लस का 16 x²। तो आपने देखा प्लस का 16 आ रहा है, प्लस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बीच वाले से हमेशा छोटा नंबर। तो आपने देखा 7 नहीं आया आंसर, 6 2 12 अभी भी नहीं आया, 5 3 15। आपने देखा जब हम बीच वाले से छोटा नंबर लेते हैं तो कम ही करते जाते हैं, बढ़ाते ही बार बार। हाँ ये वाला नंबर तो हमेशा बढ़ता जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 16 एंड 4 4 16। अभी हमने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 4x। अब पिछली बार तुमने देखा था हमारा पॉजिटिव साइन था तो हमने साइन चेंज कर दिया, इस बार तो नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, पिछली बार नेगेटिव तो हमने साइन चेंज किया, इस बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कुछ भी चेंज नहीं करते, जो साइन है उसको दोबारा ले लो, ये आ गया प्लस। अब हमने इसको हल करा तो हमने देखा x कॉमन लिया तो हमारे आ गया x प्लस 4
अगर मैंने पहले भी ये कई बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको कभी कॉमन लेने में परेशानी हो तो इस चीज को दोबारा लिख दो। आपने देखा x+4 को दोबारा लिखना है, तो आपने देखा x कब आएगा, जब हम x 4x में से क्या कॉमन लेंगे 4, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 ही कॉमन आएगा, तो आपके दोनों आंसर आ गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हमारे अगर आंसर सेम आते हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आंसर सेम भी आ सकते हैं अलग भी आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने दोनों अलग अलग जीरो रखा, x+4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। दूसरा आंसर है x+4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। अब वही ABC निकालना। ABC का तरीका मैंने पहले भी बताया और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। A का मतलब x² के मल्टीपल में या गुणा में जो भी कुछ दिया हुआ है, हमने देखा A² के मल्टीपल में कुछ नहीं है x², तो इसलिए 1 मानते हैं। दूसरा x के मल्टीपल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 8, तो हमने लिख दिया 8, और C मतलब जो बची हुई चीज है तो हमारे है 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा तो पहली वैल्यू को अल्फा बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को बीटा। वैसे तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रखना है। हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं अब दोबारा से रिपीट कर दूं, कभी भी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी दोनों चीजें इक्वल ही आएगी, अगर नहीं आ रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। एक बार अपनी क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में प्लस माइनस में कोई गलती कर दी या नंबर लिखने में भी गलती हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा है यानी -4, बी की जगह हमने रख दिया 8 आपने देखा ये तो -8 आ गया, और आपने देखा -4 कितना होता है, सेम साइन में के नंबर प्लस हो जाते हैं, -8। इन दोनों को करा तो -4 और ये 16/1। आपने देखा तीन साइन के नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव भी आते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट ABC भी निकाल सकते हैं और उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं आसानी से। यही हमारा तरीका होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे और आपको ये सॉल्यूशन के तरीके मिलते रहेंगे। इससे आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू।